السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ صرف 3 اسٹوڈنٹس ابھی تک میرے پاس اپیئر ہو رہے ہیں. وعلیکم السلام شمائلہ. جلدی جلدی سے اپنے فیلوز کو میسج کیجیے. 3:03 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، لیکچر کا ٹائم سب کو پتہ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو آپ سب جلدی جلدی سے آ جائیے تاکہ ہم لیکچر سٹارٹ کر سکیں. وعلیکم السلام خدیجہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، کوئی اسائنمنٹ دی تھی میں نے لاسٹ لیکچر میں، کچھ یاد ہے کسی کو؟ وعلیکم السلام گل لالا. اچھا، آواز کلیئر ہے میری بیٹا؟ I'm audible to all of you. وعلیکم السلام عارفہ اینڈ وعلیکم السلام عارفہ. وعلیکم السلام سب، میں ٹھیک ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں عارفہ. چلیں ذرا جلدی سے بتائیں، لاسٹ لیکچر میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا تھا، کیا اسائنمنٹ تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یا پھر لیکچر کے ساتھ ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں بھائی؟ لیکچر ختم ہوا ساتھ ہی ہم سب کچھ بھول گئے.
بیٹا میسج کریں اپنے کلاس فیلوز کو. ویسے میں نے بھی گروپ میں میسج کیا ہے, جلدی جلدی سے آ جائیں آپ لوگ تاکہ ہم لیکچر سٹارٹ کر سکیں. دیکھیں ہمارا لیکچر بھی اپلوڈ ہو گیا ہے اور اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. دس از ویری بیڈ. کہاں ہیں بچے کرتے ہیں؟ کوئی کسی کو نہیں یاد کیا اسائنمنٹ دیا تھا لاسٹ لیکچر میں؟ اوکے چلنے کافی ٹائم ہو گیا ہے. آپ سب کو لیکچر کا ٹائم پتہ ہے. یو آل شوڈ بی ان ٹائم. اچھا مجھے بس پلیز میسج کر کے بتا دیجیے دیٹ وائس میری کلیئر ہے. ایم آئی آڈیبل ٹو آل آف یو؟ تو پھر ہم جو ہے بس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. ایتھیکل ڈائلیما پڑھ رہے تھے ہم. ایتھیکل ڈائلیما ان پروفیشنل پریکٹس. پلیز ایک میسج کر کے جلدی سے بتا دیں بیٹا. یہ تھوڑا سا کنیکٹ ہوا ہے. اوکے جینیفر نے کہا ہے کلیئر ہے وائس. سمیہ نے بھی کہا ہے کلیئر ہے وائس. ٹھیک ہے تھینک یو. شمائلہ بیٹا آپ کو آواز نہیں آ رہی تو پلیز انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیجیے. ٹھیک ہے تھینک یو گریلال اینڈ عارفہ. ہم ایتھیکل ڈائلیما پڑھ رہے تھے. ایتھیکل ڈائلیما آواز تو آ نہیں رہی. فاطمہ آ رہی ہوگی بیٹا آواز کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے. ایتھیکل ڈائلیما پڑھ رہے تھے ان پروفیشنل پریکٹس. ہم نے لیکچر سٹارٹ کیا تھا, ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. کیا کیا چیزیں ہم چکے ہیں تھوڑا سا جلدی سے اوور ویو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تب تک جو اسٹوڈنٹس ابھی بہت کم اسٹرینتھ ہے, جسٹ 13 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. سو جلدی جلدی سے آپ لوگ اس وقت تک ہم تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں. آپ لوگ جوائن کر لیے. کیا پڑھنا dilemma is decision in which you have to make a choice. You have to choose one alternative among
lot of alternatives, and especially both are usually equally undesirable. Walaikum assalam, Musarrat. And if this situation occurs in an any ethical concern, like जहाँ पे आपके ethics involve हो जाते हैं, simply that is called ethical dilemma. Then we discussed an example about a family planning method for as an ethical dilemma example. After that, we saw that what is professional obligation. Professional obligation was simply about your responsibility towards your profession. So after that, we moved towards the different types of ethical dilemma. More specifically in nursing, we discussed both types of ethical dilemma in regard to nursing ethics, and we gave you the examples from nurse point of view. There were two types which we have discussed, were about internal dilemma and external dilemma. Internal dilemma was particularly about the dilemma which you face with yourself, with your values, your beliefs. This dilemma can be with the patient or with nurse. And second example we discussed, that was external dilemma. This dilemma is between patient and the surrounding, patient and the environment, between the patient and the nurse. Then एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर ली थी हमने internal or external dilemma ki. After that, in our previous lecture, we discussed different examples of ethical dilemma. First जो हम example discuss की थी, that was about physician assisted suicide. It is a type of active euthanasia. हमने discuss किया था कि जो physician assisted suicide है, ये basically जो है एक एग्जांपल है एथिकल डायलेमा की. इसमें क्या सिचुएशन है, देखें पेशेंट का अपना कंसर्न है, पेशेंट जो है मे बी के एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हो सकता है, एंड स्टेज एनी डिजीज हो सकता है. उसमें देखें पेशेंट का अपने वैल्यूज हैं, अपने बिलीव्स हैं कि पेशेंट जो है ही उसी में डिसाइड कि अब उसे मर जाना चाहिए. सो मर्सी किलिंग, जो मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि मर्सी किलिंग जो दिस इज नॉट इन कंप्लायंस विद मर्सी किलिंग का, दिस इज सिंपली फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, जो यूजुअली अब्रॉड कंट्रीज में तो फॉलो की जाती है. ठीक है. और देन वी डिस्कस्ड अबाउट राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट. दिस इज द राइट ऑफ द पेशेंट कि वो एडवांस डायरेक्टिव साइन कर सकते हैं. अच्छा मरियम, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? सब बच्चों के साथ ये इशू हो रहा है? आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है? मैं 1 मिनट वेट करती हूँ. यू ऑल नो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम लेक्चर्स सिंस वेरी बिगिनिंग बहुत. आई वेट फॉर 1 मिनट. किस किस स्टूडेंट को वॉइस का इशू आ रहा है, ताकि हमें पता लग सके कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मेरी तरफ से है या फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हम उसे रिजॉल्व कर सकें और स्मूथली अपने लेक्चर को ले चलें. क्लियर है? जेनिफर ने कहा है क्लियर है. तो बेटा जिन स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रहा है काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए. देन वी डिस्कस अबाउट द रिफ्यूज़ल अबाउट ट्रीटमेंट, कि हमने ये अब देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट आप सबको पता है, हमने डिस्कस किया था कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. अच्छा मुसर्रत भी कह रहे हैं वॉइस इशू. बेटा यहाँ से तो चीज़ें क्लियर हैं, आप देख लें कि रिफ्यूज़ आप एडवांस डायरेक्टिव साइन करवा लिया जाता है पेशेंट से या फिर उनके अटेंडेंट से. बट ऑब्वियसली यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, बिकॉज अगर आप पेशेंट एडमिट होते हैं, वी नर्सेज, वी डॉक्टर्स, हम सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वट इज़ आवर ड्यूटी? आवर ड्यूटी इज़ टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स. अब अगर पेशेंट ही ऐसा चाहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक डायलेमा जो है वो क्रिएट हो जाता है. अच्छा चलें 1 सेकंड मुझे दें ज़रा. आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, मैं इसे 2 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ. काफ़ी स्टूडेंट्स को आज वॉइस का इशू हो रहा है. 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ बेटा. कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि देखें चीज़ें बिल्कुल स्मूथ क्लियर चलनी चाहिए, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता पढ़ने में, पढ़ाने में मज़ा आता है. सो
ہم سے چیک کر ہوپ فلی اب آواز آپ کو کلیئر آئے گی بیٹا. پھر بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ بتا دیجیے گا. چلیے ہم نے ریفیوزل ٹو ٹریٹمنٹ ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد بھی ڈسکسڈ اباؤٹ دا DNR کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے لائک ہمارے بینو کے پیلیٹیو کیئر کے اوپر ہے, جیسے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ ٹیومرس کے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں, اینڈ اسٹیج ان کو جو ہے ہم کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ وی کین پرووائڈ دیم پیلیٹیو کیئر, سمٹومیٹک ریلیف, سمٹومیٹک کیئر, اس کے علاوہ ہم انہیں کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. سو ایسی کنڈیشن میں ایسے پیشنٹ سم ٹائم ان کی اٹینڈنٹ یا پھر پیشنٹ DNR سائن کر دیتے ہیں. وٹ ڈز اٹ مین؟ سمپلی یہاں پہ پھر ایک ڈائلیما کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز اب ہم وی کین ناٹ ریسسیٹیٹ آور پیشنٹ, اینڈ obviously this is not in compliance to healthcare practices, not in compliance with nurses, neither in compliance with doctor's practice. So this is another dilemma. And after that, refusal to treat, we discussed this is the right of the nurse to refuse providing treatment, especially if he or she assigned to any particular infected patient. If we take it as a general, as a profession, it might be possible, but if we take this issue in reference to the code of ethics, particularly code of ethics of nursing ethics. So we cannot we are particularly we are responsible, we are accountable for providing care to the patient, regardless their disease, regardless their religious discrimination, their financial discrimination, anything. ہمیں بالکل بھی we are not allowed کہ ہم کسی بھی پیشنٹ کو, کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹ ہے, we have to provide care to them. اب ٹھیک ہے بیٹا, آواز کافی بچوں کو آواز کا ایشو آ رہا تھا, تو مجھے بتائیے ایک میسج کر کے اب میری آواز کلیئر ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا جینیٹک ریسرچ, اینڈ آئی ٹولڈ یو اباؤٹ کہ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ فار آور فیوچر ہیلتھ, فار آور فیوچر جنریشن, فار آر سیلف. سو جینیٹک ریسرچ میں جو جینیٹک مٹیریل لیا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے, اٹ the information regarding particularly to the genetic research, it should be clear to the patient. آپ جس بھی پیشنٹ سے although پیشنٹس ولنگ ہوتے ہیں ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ولنگ ہوتے ہیں, بٹ انہیں بالکل جو ہے کلیئر انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی, اینڈ دس از رانگ. If you provide the complete information to your patient, so الٹیمیٹلی وہاں اس قسم کا کوئی بھی کانفلکٹ کریٹ نہیں ہوگا, وہاں اس قسم کا کوئی بھی ڈائلیما کریٹ نہیں ہوگا کہ وہ جو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں کس کے ساتھ شیئر کریں گے, یا کس کس کا ایکسیس ہوگا اس انفارمیشن کو. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. This all information should be shared with the patient. Good afternoon Orange Gems. Okay, thank you بیٹا, finally سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے, گڈ. چلیں جی, اس کے بعد وی ڈسکس اباؤٹ دا نرس پیشنٹ ریشو, جو کہ انفارچونیٹلی بہت ہی خراب ہے, پرٹیکولرلی ان پاکستان. وی ڈسکسڈ اباؤٹ انڈین نرسنگ کاؤنسل کے اکارڈنگ وٹ شوڈ بی دا نرس اینڈ پیشنٹ ریشو ان ٹیچنگ ہاسپٹل, ان نان ٹیچنگ ہاسپٹل. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن ان Pakistani hospitals, whether they are private hospitals, they are from armed forces, or they are from government hospitals. And then we discussed that what should be the nurse patient ratio internationally approved. Then participation in research, we have to resume our lecture from here. Ethical issues arise when innocent children and adults are I think یہ بھی تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, بٹ اوکے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے کہ ethical issues arise when innocent children and adults are subject of experimental research work. There are situations wherein children and adults are used as subject without their consent and without providing clear information on what is being done to them. It is the duty of the nurse to create an awareness about the situation and help them to utilize
is their right. देखें रिसर्च में पार्टिसिपेट करना, जिस तरह से आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द जेनेटिक रिसर्च, सेम इज़ द सिचुएशन विद एनी काइंड ऑफ रिसर्च. रिसर्च में पार्टिसिपेट करना ओके, मोस्ट वेलकम, और बीइंग अ पेशेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. बट सम टाइम रिसर्च में जो है इनोसेंट चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे एडल्ट्स इन्वॉल्व. ऑब्वियसली दे आर आवर सब्जेक्ट्स ना फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आप सबने रिसर्च भी पढ़ी होगी, यू नो, कि जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स. तो जो हमारे रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं, अगर तो इफ़ दे आर चिल्ड्रन, ऑब्वियसली उन्हें भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नहीं तो ऑब्वियसली इफ़ दे आर इनोसेंट, दे आर नॉट एडल्ट, देयर पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड each and everything about the research. Same is the case with adults हैं तो उन्हें भी research work से related जितना भी experimental work है, तमाम information it should be shared with the adult patients. समटाइम ऐसा होता है कि हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग कि हम इवन कॉन्सेंट भी नहीं लेते हैं, विदाउट इवन टेकिंग कॉन्सेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन और पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, और वेदर वी हैव एडल्ट पेशेंट्स, हम वी आर यूजिंग देम एज अ सब्जेक्ट फॉर आवर रिसर्च वर्क. एंड इवन हम उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग. दैट वार्ड एरिया में आपने देखा होगा कि सम टाइम कोई आता है और ही और शी इज़ डूइंग रिसर्च वर्क, बिल्कुल भी पेशेंट्स को नहीं बताया जाता, और उनको कोई फॉर्म दे दिए जाते हैं या फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी जाती है, और उनको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, उनकी विलिंगनेस नहीं पूछी जाती. दिस इज़ रॉन्ग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत बहुत ही गलत बात है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि आप इवन कॉन्सेंट नहीं लेते. और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कॉन्सेंट ले भी लिया जाता है तो उन्हें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती. अगर उन्हें जस्ट ये बता दिया जाता है कि जी हम ये कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन उसके साथ नहीं बताया जाता कि ये मेडिसिन है, कि हम आपको कोई एग्जाम्पल है कि हम आपको कोई ओरल मेडिसिन है, हम इसका एक्सपेरिमेंट आप पे करना चाह रहे हैं, या फिर कोई आईवी मेडिकेशन है, हम इसका एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करना चाह रहे हैं. बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन क्लियर प्रोवाइड नहीं की जाती. फिर अगर ये चीज़ प्रोवाइड कर भी दी जाए तो उसके साथ दूसरी चीज़ क्या अटैच होती है कि बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि इस मेडिसिन के जो हम आपको दे रहे हैं, वी हैव टू कंडक्ट रिसर्च, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. देखिए ठीक है आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली जो उस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी तो पेशेंट को पता होनी चाहिए, पेशेंट को वो तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. एंड दिस इज़ रॉन्ग कि अगर हमारे पास यू ऑल नो कि इसी तरह की प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिसेस हैं. एंड अब यहाँ पे नर्स का जो रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि नर्स, इट्स द ड्यूटी ऑफ द नर्स कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे इस तरह की तमाम सिचुएशन में, एंड हेल्प आउट करे अपने पेशेंट्स को कि ये उनका राइट है पेशेंट को एजुकेट. देखिए वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ अ नर्स एज एन एजुकेटर. सो वो एजुकेट करे यहाँ पे पेशेंट को बताए दिस इज़ योर राइट कि आपको इस तरह से कोई यूज़ नहीं कर सकता. दिस इज़ योर राइट कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में. प्लस नर्स का देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, दैट इज़ एडवोकेटर. नर्स इज़ वर्किंग एज एन एडवोकेट ऑफ हिज और हर पेशेंट. सो यहाँ पे वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है. अच्छा खतीजा आप क्या कह रही हैं, मेडिसिन इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते, जो कि एग्जैक्टली खतीजा यही मैं डिस्कस कर रही हूँ. दैट वी हैव सीन के ठीक है रिसर्च के लिए सम टाइम लोग ये क्लेम भी कर रहे होते हैं कि जी हमने अगर रिसर्च कंडक्ट की है तो वी हैव टेकन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, वी हैव told our patient that we are conducting the research on this subject, and you are the participant of our study, our research work, whatever. And even sometime they even claim that हम तो जी consent लेते हैं, हमने patient को particularly बता दिया. Even we have told them about the medication which we are going to experiment on him or her. But the
particularly the bad consequences, the side effects which are attached with that particular medicine or experiment work. Those side effects are not discussed with the patients, और ये बिल्कुल गलत है. देखिए जिस तरह से हमने informed consent पढ़ा था, if you remembered, we have discussed informed consent का जो हमारा बहुत डिटेल, वैसे भी informed consent हमने जब से नर्सिंग एथिक्स को स्टार्ट किया है, again and again we have discussed about informed consent. But when we learn about informed consent particularly, टॉपिक हमने जब डिस्कस किया था, इसमें आपके साथ इन्फॉर्म कंसेंट को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था. इवन you have to tell each and everything to the patient. Same is the case with here. अगर आप like वो तो देखें, आपका पेशेंट है, एडमिटेड है, ठीक है, पेशेंट ऑब्वियसली उसे कोई मसला है, कोई सर्जरी करवानी, वॉट एवर, इसीलिए तो पेशेंट आपका एडमिट है ना, देयर इज समथिंग विद द पेशेंट. तो जब उसमें लीनियंसी नहीं है अबाउट दिस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लीनियंसी ओवर हियर इन रिसर्च वर्क? रिसर्च में देखिए दैट इज देयर इज नो personal interest of the patient. Okay, I agree, which we have discussed in our last lecture, that research is necessary. research में कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारा benefit मौजूद है for our future generation or ourselves. But दैट इज़ कहना चाहिए कि एक कंबाइन उसके जो है ना पॉजिटिव आउटकम्स हैं. एक पर्टिकुलरली किसी एक पेशेंट का इसमें कोई कंसर्न नहीं है, तो इट शुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम सना. इतना लेट ज्वाइन किया बेटा आपने? तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं. टाइम से आया करें प्लीज़. मुझे आपकी वजह से फिर 10 मिनट वैसे ही वेट करना पड़ता है. हम प्रीवियस जो है डिस्कस करते हैं, तब तक टाइम से आया करें. चलें जी. ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स है. In the case of participation of patients or subjects in random trial of experimental treatment, the patient have to undergo a series of experiments. Patients may not be clearly explained about the experiment. For example, in the case of a new medicine, patients may be injected with the medicine without being made aware of the side effects. They accept it and become subjects of the trial and error experiments. अच्छा देखें, अभी तो हमने रिसर्च की, पहले हमने आपको पर्टिकुलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द जेनेटिक रिसर्च. आफ्टर दैट जो मैंने आपसे देखिए, रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यू नो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन नहीं होती है. उसके अलावा देखें डिफरेंट हमारे स्केल्स होते हैं विच वी यूज़. हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ की वजह से. पेशेंट की फिजिकल कितना कॉन्स्टेंट उसके ऊपर आ रहा है, ये भी हम रिसर्च में चेक कर रहे होते हैं. और प्लस ये है कि पेशेंट की कोई भी फिजिकल कंडीशन है जिसके साथ वो एडमिट हुआ है, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, उसका उसके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही हैं. प्लस हमने ये चीज़ भी देखी है दैट हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के साथ, पेशेंट एडमिट हो रहे होते हैं, उनके ऊपर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा होता है. देखिए तो इसमें कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं हो रही, कोई ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन कोई चीज़ नहीं है. बट दिस ऑल्सो कम्स अंडर रिसर्च. सो जब हम किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो वहाँ ट्रायल एंड एरर, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स में यही होता है. वी ट्राई, we fail, then again we try, we fail. Okay, right, trial and error experimentation are acceptable, but this is necessary that all the things, all the information related to that particular trial and error experiment, it should be explained to the patient. मेडिसिन कोई इन्वेंशन, न्यू एग्जाम्पल मैंने आपको दी, न्यू मेडिसिन जब हम इन्वेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम we have to take a trial on animal, but ultimately when we can accept that particular medicine after experimentation on any animal, we have to take a trial on human being, because we are making medicine for human beings. So ultimately human being के ऊपर तो उसका experiment करना ही पड़ेगा. But it should be your patient should be, or your subject should be aware about the side effects. Trial and error is acceptable, but the information
should be conveyed to the to your subject. This is the these are the moral values which we all should follow. अच्छा सना, सॉरी मैम जी बट मेरी ड्यूटी में लग गई है कोरोना में, वहाँ से ट्रैवल में ये कराने। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, क्लियर हो गया है बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? सब साथ है मेरे? अच्छा, ज़रा बताएं ना। अब तो काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। किसी को याद नहीं है मैंने लास्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट दिया था? जल्दी से सोचें और मुझे जवाब दें। आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था लास्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम मिसबा। ओके, थैंक यू सुमैया हतीजा। चलें जी, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ ली एथिकल डायलेमा की। नाउ वी विल डिस्कस, we will learn what is negligence, what is malpractice. Negligence is a failure to take reasonable care to avoid causing injury or loss to another person. Ethical, ruled care, expected to be exercised among specified circumstances. For example, harmful objects left near the patient with suicidal thoughts. Negligence की definitions हैं. I put over here two definitions. Negligence, what is negligence? Is basically a failure. Failure of what? Failure to take reasonable care. यानी आप फेल हो गए हैं ऐसी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए जो कि इंजरी फ्री हो या किसी भी किस्म का लॉस जिसकी वजह से पेशेंट को ना हो. So you are negligent. Negligence is basically failure. और second definition जो है, that is also a failure to exercise appropriate or ethical ruled care expected to be exercised among specified circumstances. यानी देखिए, हर किस्म की सिचुएशन में यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, इवन यू आर वर्किंग इन अ सर्जिकल वार्ड. पेशेंट आपको पता है जनरल वार्ड है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, बट एक ही वार्ड में एक ही किस्म के पेशेंट्स आपके पास मौजूद होंगे, बट यू नो कि डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस हर पेशेंट के साथ अटैच होंगे. ठीक है, सो कोई पेशेंट क्रैश भी कर सकता है आपका. So different situations, different circumstances you have to face in a single day, in a single duty, in a single ward, in uh, a general common type of patient, but you have to face different circumstances. And this is the point, this is the stage where you have to perform, you have to exercise your care according to that particular circumstances. अगर देखें पेशेंट आपके पास है, आप तो कहेंगे जी ठीक है, मैं तो जनरल वार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आराम से सारा दिन चेयर के ऊपर बैठी रहूँ. ठीक है, पेशेंट को मैंने मेडिकेशन दे दी एंड ऑल दैट. उसके बाद आई नो आपका एक पेशेंट क्रश कर जाता है. व्हाट यू हैव टू डू? ऑब्वियसली आपका पेशेंट क्रश कर गया है, सो यू हैव टू, you should not be panic, should not create any panic, but obviously you have to be active. आपको फौरन से रिस्पांस देना होगा. पेशेंट क्रश कर गया है, आपको अपनी टीम, अपने जो भी कोड्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट वार्ड्स के आपको पता है कोड्स होते हैं, आपको वो कॉल करने होंगे, आपको कंसल्टेंट को बुलाना होगा, आपको पेशेंट का CPR स्टार्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें. सो अगर आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर आपसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं केयर, सो यू आर अ वेरी गुड नर्स. इफ़ यू फेल, दिस इज़ नेग्लिजेंस. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल आपको दी कि अगर कोई आपका सुइसाइडल थॉट्स के साथ आपके पास एक पेशेंट एडमिट है, तो दिस इज़ अंडरस्टूड ना बेटा कि अगर उसको सुइसाइडल थॉट्स आ रही हैं, सो दिस इज़ अंडरस्टूड कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आप उसके पास कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं, आप नाइफ छोड़ देते हैं, कोई ऐसी चीज़, व्हाट इज़ दिस? पेशेंट ठीक था, ओके, पेशेंट वाज विद सुसाइडल थॉट्स, बट जब वो सुसाइडल थॉट्स के साथ था, आपके पास एडमिट हुआ, पैनिक था, एंग्शियस था, आपने उसको डील किया. नाउ पेशेंट इज ओके, पेशेंट आपका ठीक है. तो अब
पेशेंट जब आपका ठीक है तो अब आप मुझे ये बताइए, आप पेशेंट के पास इसी तरह कोई भी चीज़ रख के आ जाएंगे, सो ये आपकी नेग्लिजेंस है। ऑल्दो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक था, लेकिन यू नो कि आपका पेशेंट सुसाइडल थॉट्स के साथ है। यानी फिर से वही वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जो बार बार हम यूज़ करते हैं, एंटीसिपेशन। नर्सिस को विजिलेंट होना पड़ता है, नर्सिस को एंटीसिपेट होना पड़ता है फॉर देयर पेशेंट हेल्थ। अगर आप एंटीसिपेट नहीं होंगे तो आप यू कैन नॉट क्लेम कि जी हाउ कैन आई प्रिडिक्ट द फ्यूचर। नो, you being a nurse have to be a predictor for your patient, have to be a predictor of future for your patient. You have to be uh, you have to anticipate the situation for your patient. So अगर आप ये सारी चीज़ें करने में you are successful, आप कामयाब हो जाते हैं, it means you are a good nurse. And if you are fail, that failure is called negligence. A nurse failing to follow a doctor's order for treatment. अब ये कुछ examples मैंने यहाँ पे add on की हैं negligence की. A nurse administering the wrong medication to a patient. A nurse failing to monitor a patient. A nurse failing to call a doctor for immediate help. A nurse not properly performing a medical procedure. All are the examples of negligence. देखिए, पेशेंट डॉक्टर आए हैं, राउंड किया है, आपको पता है मेडिसिन हो गई, कोई इन्वेस्टिगेशंस हो गई अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, मेडिसिन चेंज करनी है, कोई भी चीज़ है, आपको पता है डॉक्टर ऑर्डर जो है वो राइट डाउन करके जाते हैं। नाउ यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द डॉक्टर। ट्रीटमेंट है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, इफ़ यू आर फेल, आपने वो ऑर्डर्स जो हैं डॉक्टर लिख के चले गए, उसके बाद यू डिड नॉट बॉदर, आपने पेशेंट की डोज चेंज करनी थी। फॉर एग्जांपल patient was taking any injection, we can take example of 500 mg uh, in TDS, और अगर पेशेंट को नीड नहीं थी, डॉक्टर चेंज करके गए मेडिसिन, इट शुड बी नाउ 500 mg 2 टाइम अ डे BD। और अगर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने पेशेंट को उसी तरह से अकॉर्डिंगली आपने सेकंड रॉन्ग मेडिकेशन दी, ठीक है। वी नो कि मेडिकेशन के हमारे जो है 5 राइट्स एंड इनफैक्ट अब तो 8 राइट्स हो गए हैं, तो बट मोर बेसिक राइट्स आर 5 राइट्स। सो मेडिकेशन राइट्स हैं, अगर उसमें कहीं आपने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट हमारा यही है कि राइट मेडिकेशन टू द पेशेंट। आपने राइट मेडिकेशन नहीं दी पेशेंट को, कोई और मेडिसिन देनी थी, आपने उसकी जगह दूसरी मेडिसिन दे दी। नाउ this is failure. Being a nurse, you are dealing with the lives of people. आपके पास इस तरह की मिस्टेक्स करने का कोई चांस नहीं है। फेलिंग टू मॉनिटर अ पेशेंट, बहुत छोटी सी ड्यूटी है, वाइटल साइंस, बट मैं कहती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी यही है। वाइटल साइंस चेक करते हुए आप क्या कर रहे होते हैं? पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं ना। इफ़ यू आर फेल, आपने पेशेंट को मॉनिटर, पेशेंट को टेम्परेचर था, आपने टाइमली पेशेंट के अटेंडेंट आपके पास आके कह के गया, आपने कहा अच्छा हाँ ठीक है मैं देख लेती हूँ, उसके बाद आप नहीं गए। पेशेंट को टेम्परेचर रेज हुआ था, उसको फीवर था, यू आर नॉट एबल टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, और ना आपने उसको कहीं पे डॉक्यूमेंट किया, सो यू आर फेल। सेम इज़ द केस विद टू कॉल अ डॉक्टर। पेशेंट आपका क्रश कर गया है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, या फिर पेशेंट को पेन है, नहीं सबसाइड हो रहा, पेन किलर्स आपको बता दिए गए हैं, आपने वो एडमिनिस्टर कर दी है, सारी जो ऑर्डर्स हैं वो डॉक्टर के आपने फॉलो कर लिए हैं, बट पेशेंट का पेन सबसाइड नहीं कर रहा, सो यू हैव टू कॉल योर डॉक्टर फॉर इमीडिएट हेल्प। अगर आप टाइमली उन्हें नहीं कॉल कर सकेंगे, दिस इज़ योर फेलियर। आप यहाँ पे बिल्कुल भी लाइक आई मीन आपने कहा ठीक है, डॉक्टर को पेश करवाया या फिर आपने डॉक्टर का सेल नंबर मिलवाया, कुछ भी, अगर किसी वजह से आपका कांटेक्ट नहीं हो सका डॉक्टर से, सो आप ब्लेम नहीं कर सकते ऑपरेटर को कि जी मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी, मैंने कहा था डॉक्टर को कॉल मिला दे जी, तो ऑपरेटर ने मेरी कॉल नहीं मिला। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट। ये वो सारी चीज़ें हैं बेटा, नेग्लिजेंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और पर्टिकुलरली वैसे भी नॉट ओनली अबाउट द नेग्लिजेंस, वैसे भी नर्सिंग केयर में ओवरऑल जनरली मैं कहती हूँ
wherever you are working as a nurse, whether in ICU, in general ward, किसी भी वक्त आप काम कर रहे हैं, you are whole soul responsible for your patient. That's all. मेरा ये belief है, and I must say and I must advise to each and everyone, आपने नहीं देखना डॉक्टर को, आपने नहीं देखना टेलीफोन ऑपरेटर को, आपने नहीं देखना इवन दूसरे नर्सेस को, हाउ दे आर वर्किंग. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट बस. और किसी को आपने कुछ नहीं देखना, कोई नहीं कर रहा जो कुछ भी है, बस आपने ओन करना है अपने पेशेंट को. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली परफॉर्मिंग अ मेडिकल प्रोसीजर, जैसे कोई भी प्रोसीजर है, यू हैव टू असेस डिफरेंट प्रोसीजर्स विद योर डॉक्टर. आप उसे असेस नहीं कर पा रहे हैं. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, यू आर नॉट एबल टू एक्टिवली मॉनिटर योर पेशेंट. आप ब्लड प्रेशर में रीडिंग लेने में कोई मिस्टेक कर देते हैं. आपको आईवी कैनुलेशन पेशेंट की करनी है अगर आपने पेशेंट की एक से ज़्यादा वेन प्रिक कर दी. ये सब चीज़ें क्या हैं? यू आर फेल. दीज आर योर फेलियर्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेग्लिजेंस. अच्छा, ज़रा जल्दी जल्दी से बताइए ना आप नेग्लिजेंस. अब हम आगे थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाती हूँ साथ साथ, आप जल्दी जल्दी से बताएं. लास्ट जो असाइनमेंट है वो तो सबको भूल गई है और इसकी पनिशमेंट मिलेगी सबको. ठीक है, चलें नेग्लिजेंस के एग्जांपल्स दीजिए. आप वार्ड एरिया में सब काम करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से बताइए क्या क्या नेग्लिजेंस की और एग्जांपल्स होती हैं जो आपने फेस की हैं या आपको लगता है दैट दीज ऑल थिंग्स कैन कम अंडर नेग्लिजेंस. ओके जी, नेक्स्ट इज मेल प्रैक्टिस, a dereliction of professional duty, a failure to exercise an ordinary degree of professional skill or learning by one, such as physician or a nurse, rendering professional services which results in injury, loss, or damage. Adila, inserting cannula without septic technique. Good Adila. Like अगर आपको एक चेकलिस्ट के थ्रू हमने एक एक चीज़ when you are स्टडिंग इन एनी नर्सिंग कॉलेज और उसको जब आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपको स्किल्स में स्किल लैब में परफॉर्म करवाया जा रहा है, आफ्टर दैट आप अगर इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज नेग्लिजेंस. गुड एग्जांपल मरियम तारिक ने दिया है, फेल टू कैरी ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन राउंड. यस मरियम तारिक, ये भी गुड. खदीजा मैम, पेशेंट को पेन हो रहा हो और असेस नहीं किया, ये नेग्लिजेंस है बिकॉज पेन इज एग्जैक्टली. गुड, वाइटल साइन है मरियम तारिक. फेल टू डिलीवर मेडिकेशन ऑन टाइम. यस मरियम. अनसब, टेम्परेचर कभी चेक नहीं करते. एग्जैक्टली, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग. टेम्परेचर आपको पता है वाइटल साइंस, वाइटल मीन्स होता क्या है बेसिकली, इट्स लाइफ. एंड यू नो टेम्परेचर वी ऑल नो, पेन पेन इंडिकेट कर रहा होता है बॉडी में. अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम रखा है हमारी बॉडी में कि देखें इतना आसान कर दिया अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि पेशेंट को कहीं पेन हो रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग बॉडी में. कहीं भी इवन किसी को अगर चोट भी लग गई है, नॉट पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरिया ही घुसेगा, वायरस ही घुसे, इन्फेक्शन नहीं, वैसे भी पेशेंट को चोट लग गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा. देखिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत हमारे लिए ये निज़ाम रखा हुआ है, हम वही चेक नहीं करते. नोजोकोमिल नमोनिया इन इंटूबेटेड पेशेंट. एग्जैक्टली गुड सुमैया, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी. टेकिंग आईवी लाइन विदाउट कंसेंट इज अ फेलियर. यस नौरीन, हर चीज़ के लिए इवन यू आर टचिंग योर पेशेंट, आपको उससे कंसेंट लेना ज़रूरी है. नीलम राशिद, चेकिंग बीपी विदाउट स्टेथोस्कोप. यस यस खतीजा, ओके. चलिए जी, अब हम मेल प्रैक्टिस की आपको डेफिनेशंस बता रहे हैं. ठीक है, डेरिलिक्शन किसको कहते हैं बेटा? सिंपली फेलियर टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस, यानी आपकी जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं. देखिए नेग्लिजेंस से मेल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे तो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें तकरीबन एक ही जैसी यूजुअली हमें लगती हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि नेग्लिजेंस क्या क्या चीज़ें नेग्लिजेंस के अंदर आती हैं, क्यों आती हैं, मेल प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें. फेलियर एक्सरसाइज एंड ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्किल लर्न बाय समवन, जैसे दोनों चीज़ें अभी जैसे आपने आईवी कैनुलेशन की एग्जांपल्स दी, ब्लड प्रेशर की एग्जांपल्स दी. गुड गजाला, आपकी एग्जांपल भी ठीक है बेटा. तो देखिए आप कोई भी स्किल है, आपकी प्रोफेशनल स्किल है, वो परफॉर्म करने के लिए आप फेल हो गए हैं, दिस इज मेल प्रैक्टिस. प्लस आप उसे लर्न नहीं कर पा रहे, लाइक हम देखिए दिस ऑल्सो कम्स अंडर मेल प्रैक्टिस
that we do not want to learn from anyone. physician कोई procedure perform कर रहा है, हमारी senior nurses कोई procedure कर रही हैं, we don't want to learn from them, or even we don't show interest in learning. This comes under malpractice. And third हमने जो definition की है, that is rendering professional services which result in, rendering का मतलब simple होता है बेटा बेटा to be cause, यानी वजह बनना किसी भी चीज़ की. तो professional services जब आप provide कर रहे हैं किसी को, it may result in injury. अगर आपके कोई भी procedure perform करने की वजह से injury हुई है, loss हुआ है, damage हुआ है, this comes under malpractice. अब इसकी example किस तरह से हो सकती है? आपने देखा patient की IV line आपने maintain करनी है. अच्छा, हम देख लेते हैं, बच्चे साथ साथ आंसर कर रहे हैं. गजाला, ब्लड प्रेशर चेक, अनसब डिटेल कंडीशन इन्फॉर्म नहीं करते फैमिली और पेशेंट को. एग्जैक्टली अनसब, यू आर राइट, गुड, अच्छी एग्जांपल्स दी हैं आप सब ने. अच्छा जी, मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रही थी कि हाउ वी रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज व्हिच रिजल्ट इन इंजरी और लॉस. वी हैव टू पुट आईवी कैनुला टू आवर पेशेंट. यू ऑल नो, हमें सिखाया जाता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to assess the vein. ठीक है, पेशेंट को आपने ग्रीट करना है, पेशेंट को सारा प्रोसीजर बताना है. हम पर्टिकुलरली स्किल की बात करें तो आपने उससे प्रिपेयर करना है और उसमें पेशेंट को आपने कैनुलेट करना है. एंड देन कैनुला किस गेज का आपको यूज़ करना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज होना है या पेशेंट की सर्जरी होनी है, या आपके पास कोई ट्रॉमा का या इंजरी के साथ पेशेंट आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आया है, या फिर सिंपल आपके पास वार्ड एरिया में एक पेशेंट एडमिट है जिसको जो है ना ओडी में या बीडी में कोई मेडिकेशन मिल रही है. तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, नीड क्या है जिसके लिए हमने कैनुलेट करना है. प्लस उसी के अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द गेज ऑफ योर कैनुला एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर आईवी कैनुलेशन. उसी के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की वेन को असेस करते हैं और सेलेक्ट करते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पेशेंट की वेन को असेस करने में फेल हो गए, हमने जी बस पेशेंट को जल्दी जल्दी से, दैट वी आर समटाइम वी become overconfident, and I must say we should be confident, but overconfidence किसी भी प्रोफेशन में या आपकी इवन लाइफ में कहीं भी, आई डू नॉट बिलीव कि कहीं पे भी ये चीज़ें अच्छी होती हैं. वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. सो अगर हमने पेशेंट को प्रिक कर दिया और सही से कैनुलेट नहीं हो सका, ओवर थ्रू कर गया या फिर स्वेल कर गई, व्हाट इज़ दिस? आपने इंजरी कॉज की है, आपने इंटेंशनली इंजरी कॉज की है पेशेंट को. ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, ये आपकी प्रोफेशनल मेल प्रैक्टिस है. आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया था, आपको अच्छे से वेन को असेस करना चाहिए था, सेलेक्ट करना चाहिए था, और उसके बाद आप पेशेंट को जो है कैनुला पास करते. सो दीज ऑल थिंग्स आर मेल प्रैक्टिसेस. The most distinctive difference between the two, negligence and malpractice, is intent. In simple terms, medical negligence is a mistake that resulted in causing a patient unintended harm. Medical malpractice, on the other hand, is when a medical professional knowingly did not follow through with the proper standard of care. चांगुले लाला ने आंसर किया है, मैम जब इंडस ड्यूटी की थी इन सब प्रोटोकॉल्स साथ करते थे बट इन गवर्नमेंट नथिंग. यस एग्जैक्टली, इंडस का मेरा पर्सनली भी कराची में एग्जैक्टली यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडस हॉस्पिटल में बहुत स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड की जाती है, बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं. आई मस्ट से कि 100% तो देखें कहीं भी नहीं ना होता बेटा. 100% केयर जो है वो तो किसी भी हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं की जा रही होती है. बट इंडस हॉस्पिटल, आई मस्ट से इन कराची ऑल्सो, इंडस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है, बट गवर्नमेंट में नहीं होता. यहाँ फिर मैं वही बात कहूँगी कुल्ले लाला, माई बिलीव एंड माई एडवाइस, आई एम योर टीचर, माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट. आपने अपने पेशेंट को ओन करना है. जब आप अपने पेशेंट को ओन करना शुरू करेंगे, देन आप देखेंगे आप अपने एंड से चीज़ें कंप्लीट करें. वेदर यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आई नो, वी नो दैट अनलकीली हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी अच्छी जो है प्रैक्टिसेस नहीं होती फॉलो, बट व्हेन वी विल ओन आवर पेशेंट्स, सो अल्टीमेटली 10 लोग ना करें, 2 लोग करें. 10 शिफ्ट्स में पेशेंट को अच्छी केयर ना मिले, 2 शिफ्ट में तो पेशेंट को अच्छी केयर मिलेगी ना. सो हम
سب نے بس اپنے پیشنٹس کو آن کرنا ہے اور اپنی طرف سے جو ہے نا فل 100% ہم نے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے. اوکے, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نیگلیجنس اور میل پریکٹس میں جو بیٹا بیسیکلی ایک ڈفرینس ہے, ڈسٹنکشن ہے, دیٹ از انٹینشن. یعنی آپ کا مقصد کیا تھا. نیگلیجنس ان تمام مسٹیکس کو کہتے ہیں بیٹا, ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جہاں پہ یور انٹینشن واز ناٹ ٹو ہارم دا پیشنٹ. آپ نے انٹینشنلی پیشنٹ کو ہارم نہیں کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم رپورٹنگ نہیں کر پاتے یا اس طرح کی چیزیں, ہم اوبیسلی بیٹا انٹینشنلی تو یہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک جنرل وارڈ ہے, ہم وہاں پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو obviously انٹینشنلی تو ایسا نہیں ہوگا کہ میرا پیشنٹ اگر کریش ہو گیا ہے تو میں اپنے ڈاکٹر کو انفارم نہیں کروں گی. ہاں, اگر اس میں میں نے جیسے ٹیلی فون آپریٹر کی بات کی تھی, بیچ میں ایک انٹرپشن آ گئی اور انٹینشن یہ نہیں تھا کہ آپ نے پیشنٹ کو ہارم کرنا, بٹ میڈیکل میل پریکٹسز کا ورڈ ان تمام مسٹیکس کے لیے یوز ہوتا ہے جہاں آپ نے جانتے ہوئے یو نیو یور پروفیشنل نالج, آپ کو پتا ہے کہ آئی وی کینولیشن کرنی ہے تو اے سیپٹک ٹیکنیکس فالو کرنی ہے, آپ کو پتا ہے آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے, یو ہیو ٹو ڈریس اپ یور پیشنٹ, آپ نے کیا کیا پروٹوکالز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. اگر آپ وہ ساری اسٹینڈرڈ آف کیئر, وہ سارے اسٹیپس جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں, آپ کو سکھائے گئے ہیں, یو ہیو ٹو فالو آل دیز تھنگس, اگر آپ نے انٹینشنلی انہیں فالو نہیں کیا, اٹ مینز یو آر ڈوئنگ میل پریکٹس. اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میم مطلب ہاؤ دس از پاسبل کہ ہم انٹینشنلی پیشنٹ کو ہارم کریں گے. یہ اس طرح سے پاسبل ہے بیٹا کہ ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں, اچھا یار پیشنٹ کو کینولے پاس کرنا ہے نا, چلو ٹھیک ہے رہنے دو, کیا اب ہم جو ہے نا پراپر جو ہے آئی وی کینولیشن کی ٹرے کو ریڈی کریں اور اس کے بعد ہم جا کے پورے فل پروٹوکول فالو کریں اور اس کے بعد کریں. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں, وی نو یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں, پروٹوکالز ہیں وچ وی ہیو ٹو فالو, بٹ ہم کیا کرتے ہیں یار چھوڑو, اب کیا ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا پریپیئر کریں بیٹھ کے اور پھر جا کے جو ہے نا پیشنٹ کو ہم آئی وی کینولیٹ کریں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم انٹینشنلی پیشنٹ کو ہارم دے رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بھی ہماری انٹینشنل مسٹیکس ہوں گی دیٹ ول کم انڈر میل پریکٹسز, اور جو ہماری ان انٹینشنل مسٹیکس ہوں گی دیٹ ول کم انڈر نیگلیجنس. دس از ویری نیسسری, سب کو پتہ ہونا چاہیے نیگلیجنس اور میل پریکٹس میں یہ بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے بٹ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. یہ ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کون کون فالو کرتا ہے ذرا مجھے بتائیں نا, کون کون ان چیزوں کو, ذرا آپ لوگ کسی بھی وارڈ ایریا میں کام کریں ذرا مجھے جلدی جلدی سے ٹائپ کر کے بتائیں کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر آئی وی کینولیشن کرنی ہے پیشنٹ کو تو پراپر آئی وی کینولیشن کی ٹرے بناتے ہیں اور پھر جا کے پیشنٹ کو جو ہے کینولیٹ کرتے ہیں. چلیں کامن ایریا ڈسکس کر لیتے ہیں اب نیگلیجنس اور میل پریکٹسز کے, فار وچ نرسز آر لائبل while providing care to the patients. First of all, failing to properly monitor, missing a change in vital signs, not seeking the assistance of a doctor, failure to respond to a patient. اچھا نیلم آپ کرتی ہیں, اور کوئی نہیں کرتا, سارے غائب ہو گئے. چلیے جی, فرسٹ آف آل فیلئر ٹو پراپرلی مانیٹر, ابھی ڈسکس کیا تھا وائٹل سائنس. وائٹل سائنس آر موسٹ امپورٹنٹ ایز آر لائف. وائٹل مینس لائف. سو ٹمپریچر میں چینج آ رہا ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پیشنٹ ہے نا, سرجری ہوئی ہے, اٹس اوکے. پیشنٹ کو 100 فیور ہو گیا, 101 ہو گیا, ہم آرام سے اپنی چیئر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر جسے بھی بتایا بہت رانگ پریکٹس ہے کہ اسٹیتھوسکوپ یوز نہیں کرتے, اس کے بغیر ہم بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں پیشنٹ کا. مینس ہاؤ مچ وی آر کمپیٹنٹ, انفیکٹ ہم خود کو کتنا کمپیٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. سو بلڈ پریشر, پیشنٹ آپ کا ہائپو میں جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ہم آرام سے اپنی چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وائٹل سائنز ہیں, ہمارے لائف کے سائنز ہیں. ہم کسی بھی چیز کو بادر نہیں کرتے. اور سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم جو بھی چیزیں ہیں, چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں پیشنٹ کے اندر, اپنے کنسلٹنٹ کو ہم فارورڈ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یعنی پیشنٹ کی جو بھی کنڈیشن ہے, وی آر فیل ٹو رسپونڈ ٹو آور پیشنٹ.
हम अपने पेशेंट की जो चेंजेस हैं उसको रिस्पॉन्ड का बेटा क्या मतलब है, रिस्पॉन्स देना तो उसी वक्त बेनिफिशेंट होगा ना कि जब हम अपने पेशेंट में होने वाली चेंजेस को ट्रूली ऑब्जर्व करें। अगर हमने सिर्फ वही चीज़ें कि हाँ जी हमने ड्यूटी पे आना है आके जी ठीक है पेशेंट को, हाँ पेशेंट तो स्टेबल था ठीक है जी टेम्परेचर नॉर्मल लिख दिया, ब्लड प्रेशर इतना, ईच एंड एवरीथिंग, नो, दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप नाउ। जब हम पेशेंट की जो पर्टिकुलरली जो उसकी सिचुएशन है, जब उसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो ऐसे रिस्पॉन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पेशेंट के वाइटल साइंस के अंदर होने वाली चेंजेस को मिस भी कर रहे हैं। हम अगर उन्हें नोट कर भी रहे हैं तो हम उन्हें आगे प्रॉपरली जो है फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, नॉट सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ अ डॉक्टर, और दिस इज़ आवर नेग्लिजेंस, वी आर लाइबल। देखिए ये सारी चीज़ें वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि नेग्लिजेंसेस, ठीक है नेग्लिजेंसेस होती हैं, समझ आ गई, बट नर्सिस की लाइबिलिटी क्या है, नर्सिस के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, नर्सिस कितना रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो असिस्टेंस डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम डॉक्टर की जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर की या इस तरह की कोई, नो, ये सारी हमारी मिस्टेक्स हैं, वी आर लाइबल, हम रिस्पॉन्सिबल है, नहीं करेंगे तो हमें सू किया जा सकता है, हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा बच्चों ने आंसर, अच्छा जेनिफर ने कहा है मैं भी करती हूँ, सना ने कहा है मैं करती हूँ, अच्छा जी खतीजा ने कहा है मैम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे करते हैं, मैंने अभी आपको यही समझाया। अ, खतीजा ने कहा गवर्नमेंट में भी तो हम ही होते हैं ना डियर। गुलेलाला ने कहा है जी बिल्कुल खतीजा, यहाँ हम अपने पेशेंट्स की टाइम से मेडिसिन ही कर लें, बहुत बात है क्योंकि पेशेंट ही बहुत, जी गुलेलाला आई एग्री विद दिस। देखिए हमने डिस्कस किया था पेशेंट नर्स रेशो, उसमें मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी कि अनफॉर्चुनेटली अनलकीली हमें ये सारी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं, बट मैं बार बार यही कहूँगी दैट फर्स्ट स्टेप यही हमारा कि हम अपने पेशेंट्स को ऑन करें। जब हम अपने पेशेंट्स को ऑन करना शुरू करेंगे ना बेटा, एक एग्जांपल है छोटी सी वैसे ही, हमारे घर में हमारे बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, देखिए हम उन्हें ऑन करते हैं ना, हम जैसे भी होता है, इवन आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, यू आर पोस्ट आर एन BSN स्टूडेंट्स, आप पढ़ भी रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपने असाइनमेंट्स के लिए भी टाइम निकालते हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करें, उसके साथ साथ गॉड फॉरबिड आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप उसके लिए भी टाइम निकालते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्यों, बिकॉज यू ऑन देम। तो सिंपल, जब हम अपने पेशेंट्स को ऑन करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली हम ये सारी सिचुएशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और जो बच्चे करते हैं फॉलो करते हैं इन प्रैक्टिसेस को, बहुत अच्छी बात है। मुसर्रत मैम जी पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस नहीं है बट इन सऊदी अरेबिया में करते थे, ठीक है, गुड। नौरीन जेम्स आई एम वर्किंग इन नर्सरी ICU एंड आई फॉलो, गुड नौरीन। फजाला मैम मैं भी करती हूँ, गुड, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी चलें, एक तो ऑलमोस्ट 2.5 इनफैक्ट मिनट्स आर लेफ्ट, तो थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं एक दो चीज़ें। एक तो एक ये अनाउंसमेंट है बेटा कि कल आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह 4 to 5 नर्सिंग एथिक्स की, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, वैसे जो स्टूडेंट यहाँ हैं वो कम्युनिकेट भी करते हैं बच्चों अपने जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। कल इंशाल्लाह नर्सिंग एथिक्स की 4 to 5 क्लास होगी और हम यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था जो किसी को याद नहीं आया, वेरी बैड, वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने आप सबसे कहा था कि अपने अपने वार्ड एरिया में वेदर इन पास्ट आप इनकाउंटर कर चुके हैं या फिर नियर रिसेंटली यानी आप इन चीज़ों के साथ इनकाउंटर कर चुके हैं, एथिकल डायलेमास मैंने कहा था उसके एग्जांपल्स आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, लेकिन किसी बच्चे ने शेयर नहीं की। तो अगेन यही असाइनमेंट है, यही हमारा टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट कल लेक्चर है। सो आई होप कि आप लोग मेरे साथ जो एथिकल डायलेमा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। प्लस नेग्लिजेंस एंड मेल प्रैक्टिस आज हमने पढ़ा है, तो नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस से रिलेटेड भी दिस इज़ योर असाइनमेंट कि आप लोग नेग्लिजेंस और मेल प्रैक्टिस से रिलेटेड भी एग्जांपल्स मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। जो जो मैंने अनाउंसमेंट्स की हैं अपने स्टूडेंट्स क्लास फेलोज के साथ भी आप शेयर कर लें, और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बहुत ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, और जो भी पढ़ाती हूँ बेटा उससे पोस्ट रीड किया करें, ध्यान से पढ़ा करें, इंशाल्लाह
کل پھر ہماری کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.